آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج یا جوادو اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں، دولت ہی دولت، شہرت ہی شہرت ملتی ہے۔ آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر جو غربت کا دھبا لگ چکا ہے اللہ والوں، وہ آج ہی آج میں ختم ہو جائے گا۔ کروڑوں کا بھی اگر قرضہ ہے تو غیب سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے اور قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ بس آج یا جوادو اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کی وجہ سے ہی چلا رہا ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج یا جوادو اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہونے والی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھلتے دکھائی دیتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ماہ رجب کی 21 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اگر آج کے اس مقدس دن کو، آج کے ان قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 21 تاریخ نہیں ہے بلکہ تقدیروں کے پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہونے والی، سب دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ آج یہ موقع ہاتھوں سے ضائع مت کرنا، پھر پورے ایک سال کے انتظار کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یا جوادو کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں نے پہلے بھی کئی بار یا جوادو کا آپ لوگوں کو عمل بتایا ہے، اور آپ نے جب بھی اس وظیفے کو پڑھا کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ لوگوں کو ملی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص نام ہے۔ یہ اتنا خاص نام ہے کہ ہر کوئی اللہ والوں اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد میری بھی حاجتیں، میری بھی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ یا جوادو یا اللہ کا عمل صرف ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ اور یا اللہ یا محمد تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے پوری دنیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اللہ والوں، لازمی نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین سے مدد مانگے۔ اللہ پاک 100% آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو دوستوں، یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ والوں 20 دن گزر چکے ہیں، آج 21 تاریخ ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے اللہ پاک کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے اپنی من کی مرادیں پوری کروا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 21 تاریخ آ جائے، ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔
بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس عمل کو ہرگز بھی عام نہیں سمجھنا۔ اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، رزق کے تمام بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ یہ نصیبوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کو پلٹنے والی تسبیح ہے۔ بس ایک بار ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کریں مجھے دعائیں دو گے آپ لوگ، خدا کی قسم دعائیں دو گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے، بس ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کرنے کی کوشش کیجئے گا، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی ہی کیوں نہ ہو، پرندوں کو وہی ڈال دیجئے گا، لیکن صدقہ کرنے کی کوشش لازمی کریے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ تو اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی
दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7,000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तग़फ़ार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों हर बंदे की परेशानी अलग है, लेकिन परेशान हर बंदा है। हर बंदा ही यकीन करे परेशानी के आलम में घिरा हुआ है। तो अगर उस परेशानी से निकलना चाहते हैं तो आज माह रजब की 21 तारीख तीसरे इतवार के दिन ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़े, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बस बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं करनी, और थोड़ा बहुत सदका करने की कोशिश करें। अगर एक मुट्ठी चावल और चीनी भर पढ़ लेंगे तो फायदे आपको ही बढ़ जाएंगे, ज्यादा मिलने लगेंगे। और अगर ये चीजें मुयस्सर नहीं तो 10-20 रुपए पर पढ़ लें और उसको सदका कर दीजिएगा, गरीबों को दे दीजिएगा। यकीन करें आप लोग दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। अब अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें। मकसद कोई सा भी हो, जैसा मैंने आपको बताया, पसंद की शादी, पसंद की नौकरी, या फिर कोई दुश्मन है तंग कर रहा है उसको जेर करना है, जो भी मकसद हो, बस अपने खास मकसद को जहन में रखो और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है, और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं।
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिगर कौन सा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है।
सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है या जवादू, ये आप लोगों ने आखिर में पढ़ना है, जो कि अल्लाह पाक की बेपनाह सखावत, उसकी बे इंतहा अता और इसकी बेहिसाब बख्शिश को जाहिर करता है। कोशिश करें अल्लाह वालों के एक मुट्ठी चीनी भी साथ रख ही लें, या पानी अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रब की राह में सदका जरूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन या जवादू को पढ़ना किस तरीके से है जरा तरतीब को समझ लें, क्योंकि या जवादू के मायने हैं बे इंतहा बख्शने वाला, बेहिसाब अता करने वाला, वो जो मांगने वाले को महरूम नहीं करता, वो जो अपनी मखलूक पर हमेशा फजलो करम की बारिश करता रहता है। इंसान की जिंदगी में इस नाम की तासीर और इसके फजाइल इतने गहरे हैं कि अगर कोई बंदा दिल से यकीन से या जवादू का जिक्र करता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दी जाती है। अल्लाह ताला की जो हिदायत है, जो अल्लाह पाक की बेपनाह की रब की मदद में शामिल होना चाहता है, वो आज या जवादू पढ़े और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़े। या जवादू का जिक्र करने वाले के दिल में एक खास तरह का सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। वो अपनी फिक्र और परेशानी से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे कभी महरूम नहीं रखेगा। दुनिया की मोहब्बत और लालच इंसान को अंधेरों में डाल देती है, लेकिन या जवादू की बरकत इंसान के दिल में कयानत, कुशादगी और सुकून पैदा कर देती है। ऐसे शख्स का दिल दुनिया की हिर्स से साफ हो जाता है और वो हमेशा अल्लाह की अता पर राजी हो जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अनुमा का फरमान रहमत निशान है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतनी सखावत करता है कि अगर बंदे को खबर हो जाए कि उसके लिए अल्लाह ने क्या लिख रखा है तो वो कभी गमगीन ना हो। यही बात या जवादू के जिक्र से इंसान समझ लेता है कि मेरा रब मुझे कितना ज्यादा नवाजने वाला है, कितनी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला है। अब अल्लाह वालों पढ़ना किस तरीके से है मुलाहिजा कीजिएगा। या जवादू एक बार हो गया, या जवादू दो बार हो गया, और अगर आप लोग इसको इस तरीके से पढ़े या जवादू या अल्लाह, तो ये भी एक अच्छा जिक्र है कि आप लोग अल्लाह ताला से बराह रास्त अपना ताल्लुक को मजबूत करेंगे जब आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे या जवादू या अल्लाह। या फिर आप लोग या जवादू पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो लिखा हुआ तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग या जवादू भी पढ़ सकते हैं और या जवादू या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपने 33 बार है, 33 टाइम्स, ना 32 हो ना 34 हो, 33 बार आपने या जवादू या अल्लाह पढ़ना है, या फिर सिर्फ या जवादू पढ़ना है और चीनी पे दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों वजीफा पढ़ लिया बड़ी मेहनत से, तवज्जो से, तवक्कुल के साथ। अब देखें उजरत का वक्त है, अब अल्लाह पाक से दुआ करें और दुआ बेहतरीन अंदाज में करिएगा। अल्लाह वालों हम लोग बाज औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, और वो गलतियां कौन सी होती हैं? दुआएं सही तरह से ना करना। अल्लाह वालों दुआ मोमिन का हथियार होता है, अगर दुआ ही अच्छे अंदाज में नहीं करोगे तो कामयाबियां कहां से मिलेंगी? तो दुआ अच्छे अंदाज में करें, अदब वाले अंदाज में करें, ये नहीं कि जल्दबाजी में बस दुआ करी और बस काम खत्म। नहीं भाई,
दुआ बेहतरीन अंदाज में करो, रो रो कर करो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के करो, लंबी दुआ करो। रटी रटाई जो याद दुआएं हैं ना, रब को तुम्हारी उन रटी हुई दुआओं की जरूरत नहीं है कि स्पीड से रटी हुई दुआएं पढ़ी और बस। अल्लाह वालों ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर दुआ दिल से करी और रोते हुए करी, तड़पते हुए करी, फिर देखें रास्ते कैसे खुलते हैं। क्योंकि माह रजब की 21 तारीख है और जो वजीफा आपने पढ़ा है ये आज के दिन का सबसे खास अमल है। और अगर कुछ चीनी वगैरह आपने रखा है तो उसको परिंदों को डाल दें, छत पे डाल दें, परिंदे खा लेंगे। अगर चीनी रखी है तो चूटियों को डाल दें, तो फिर वो ये अमल आपका हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। क्योंकि सदका आपको पता ही है कि गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है, और नागानी आफत और बलियात से भी आपकी हिफाजत होगी। तो अल्लाह वालों इस अमल को लाजमी पढ़ें, खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज माह रजब की 21 तारीख है, तीसरे इतवार का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दिन हमारे लिए कामयाबियों से भरा हुआ बना दे। आज हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमाए, नागानी आफत और बलियात से हिफाजत फरमाए और दुश्मनों के शर से भी बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पे खातिमा अता फरमाए, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना बनाए, हमेशा हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।